Hello everyone, मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this amazing course of Theory of Computation. हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूनिट में हैं, जहां पे आई होप कि यू आर एंजॉइंग द रेगुलर एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू फाइनाइट ऑटोमाटा आल्सो, राइट। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा आरई इक्विवेलेंस, मतलब इफ मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस आर गिवन टू अस, कैन वी प्रूव दैट दोज आर इक्विवेलेंट। एंड अभी we know one more aspect, that is languages accepted by finite automata are known as regular languages. उन्हीं लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो फाइनाइट ऑटोमाटा एंड एक्सप्रेशंस आर रिलेटेड, सो कैन वी इंटर कन्वर्ट देम, मतलब फाइनाइट ऑटोमाटा इज गिवन टू अस, कैन वी कन्वर्ट इट टू आरई, आरई इज गिवन टू अस, कैन वी कन्वर्ट इट टू फाइनाइट ऑटोमाटा। वो इश्यूज को डिस्कस करते हैं, बट लेट्स बिगिन दिस सेशन विद द usual code that TOC is all about language and corresponding converter, right? Okay. And अभी देखने जा रहे हैं RE and FA equivalence, can they be interconvertible, right? Okay. सबसे पहले देखेंगे FA to RE. Finite automata is given, can we convert it to regular expression with the help of Arden's theorem? And next to that, next session में डिस्कस करेंगे RE is given to us, can we convert it to equivalent finite automata, right? Okay. Now in this case, let us first try to understand what Arden's theorem is, which we'll be using for proving that certain finite automatas can be converted into equivalent regular expressions, right? Okay, so please observe. Let us first discuss Arden's theorem ka statement, right? Okay, so let P, Q and R are REs on input alphabet set sigma. अपने पास तीन रेगुलर एक्सप्रेशन है, P, Q, R on input set alpha, input alphabet का set that is sigma, right? Then if P does not contain epsilon, P does not contain epsilon, then regular expression of the form, यहां पे वो फॉर्म लिख रहा हूं, R is equal to Q plus RP can be converted into R is equal to QP closure, right? Okay. ये आर्डेंस थ्योरम है, जहां पे हमारा कंसंट्रेशन हमेशा रहेगा इस टाइप के इक्वेशन के ऊपर, राइट? ओके, इस टाइप का इक्वेशन अगर ध्यान से देख रहे हो, R is equal to Q plus RP, and then we are able to reduce that particular equation to R is equal to QP closure. मतलब अगर ये दोनों आप ध्यान से देख रहे हो, तो राइट हैंड साइड से हम लोग इलिमिनेट कर रहे हैं व्हाट? R. इधर देखो, राइट हैंड साइड से हम लोग इलिमिनेट कर रहे हैं R, जो LHS में है, right? Okay, and this is what we need to remember for solving the problems of Arden's theorem. So finite automata is given to us. हम लोग उस फाइनाइट ऑटोमाटा से अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो इस आर्डेन थ्योरम को ऐसे यूज करेंगे, राइट? ये आर्डेन थ्योरम का स्टेटमेंट है, कैसे यूज करना है इसका डिस्कशन आगे जाके करते हैं, राइट? ओके, सो लेट्स सी, लाइक अपने पास फाइनाइट ऑटोमाटा इज गिवन, सो वी नो दैट फाइनाइट ऑटोमाटा एंड आरई क्या रिलेशनशिप है? सो फाइनाइट ऑटोमाटा में लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? 5 टपल्स, Q, sigma, delta, Q0 and F. And regular expression is indicated with sigma and 3 notations, that is what? Plus, dot and what? Star. पर दोनों भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं सेम टाइप ऑफ लैंग्वेज, जिसमें कॉमन एंटिटी सिर्फ ये है, इनपुट अल्फाबेट तो चेंज नहीं होंगे लैंग्वेज के, because whether it's a language accepted by finite automata or represented by regular expression, input alphabets will remain same, right? तो अभी हमको जो finite automata दिया है, that is represented with the help of transition graphs. ट्रांजिशन ग्राफ मतलब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, राइट? ओके, सो फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसा डायग्राम है, ध्यान से देखना, ये
This will be playing a key role in solving the examples of Arden's theorem to find out equivalent regular expression on the given finite automata. So given finite automata, assume that अपने पास कुछ ऐसा है Q0 and then I do have, let us say, Q1, one more entity, ऐसे कुछ डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, राइट? ओके, एंड दिस इज Q2. नाउ प्लीज ऑब्जर्व दैट इसमें अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशंस इस फाइनाइट ऑटोमाटा के थ्रू कन्वर्ट करना है तो आई नीड टू कंसीडर ईच स्टेट. हर स्टेट पे मुझे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. इस केस में मैं करके दिखाने वाला हूं Q0 का कैसे हम लोग एजम्पशन करेंगे, राइट? ओके, तो Q0 के लिए मुझे इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे. Q0 के लिए इक्वेशंस कैसे लिखने हैं देखो. यू नीड टू सर्च फॉर ऑल इनकमिंग एरोज दैट इज लैंडिंग ऑन द स्टेट. Q0 पे कितने एरोज आ रहे हैं ध्यान से देखना है, राइट? स्कूल डेज वाला एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं है, राइट? Q0 में कितने एरोज आ रहे हैं? सो आप कहोगे 2 एरो आ रहे हैं, पर मुझे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, राइट? सो दिस इज एम्प्टी एरो, दिस इज 1 एरो, दिस इज सेकंड एरो. तो Q0 में इनकमिंग एरोज 3 एरोज है, राइट? तो इन 3 एरोज के साथ हम लोगों को यहाँ पे एक इक्वेशन लिखना है. कैसे लिखना है प्लीज सी, राइट? ये जो एरो है वो कौन से इनपुट सिंबल के साथ आ रहा है? There is no input symbol written onto it. So no input symbol is what? Epsilon. So पहला Q0 तक पहुंचने का रास्ता है epsilon, right? और मतलब प्लस, राइट? ओके, यूनियन मतलब चॉइस है. Q0 तक पहुंचने के कौन से चॉइस है? पहला चॉइस मैंने लिख दिया, epsilon के साथ पहुंच सकते हैं. अभी Q0 से पहुंचने के लिए मुझे Q1 से किसको लेके आना पड़ेगा? 0 को लेके आना पड़ेगा. Q1 से 0 अगर इनपुट है तो हम लोग Q0 तक पहुंच सकते हैं. तो Q0 तक पहुंचने का दूसरा रास्ता है Q1 से 0 को लेके, Q1 से 0 को लेके. एंड तीसरा रास्ता कौन सा है? राइट, Q2 से 1 को लेके यू कैन रीच टू Q0, राइट? सो और Q2 से 1 को लेके वी कैन रीच टू दिस. प्लीज सी हाउ द इक्वेशंस कैन बी रिटर्न. फाइनाइट ऑटोमाटा के हर स्टेट को आपको देखना है, फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, उसमें आने वाले एरोज के हिसाब से उसका इक्वेशन लिखना है, राइट? एंड इक्वेशन लिखते टाइम उस स्टेट तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं. सो प्लीज सी, Q0 तक पहुंचने का पहला रास्ता विथ इप्सिलॉन. दूसरा रास्ता Q1 से 0 अगर इनपुट है तो Q1 से 0 को लेके हम लोग पहुंचे Q0 तक. Q2 से 1 को लेके हम लोग पहुंचे Q0 तक. ये इक्वेशन हो गया इस Q0 का. ऐसे हमको इक्वेशन लिखते जाना है एंड फिर उन सारे स्टेट के इक्वेशंस के ऊपर आर्डेन्स थ्योरम को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. आर्डेन्स थ्योरम R इज इक्वल टू Q प्लस RP एंड उसको रिड्यूस कर सकते हैं R इज इक्वल टू QP क्लोजर्स, राइट? ओके, ये है अपना आर्डेन्स थ्योरम, राइट? जहां से हमको फोकस करना है ये ऐसे टाइप के इक्वेशन बनाने के लिए, राइट? पहला एग्जांपल जब आप देखोगे तो बहुत इजीली इसको समझ पाओगे, राइट? सो अभी आई होप कि किसी स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट एंड इनपुट अल्फाबेट, ये तो यहाँ पे है, उसमें आने वाले सारे एरोज, राइट? ओके, सो देखते हैं पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्लीज ऑब्जर्व, जनरेट इक्विवेलेंट RE फॉर फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमाटा. इस फाइनाइट ऑटोमाटा के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, राइट? ओके, फाइनाइट ऑटोमाटा आपके सामने है. इसको थोड़ा सा डिस्कशन के लिए यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, राइट? ओके, ये अपने पास, राइट? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? देयर आर Q0, Q1 एंड Q2 स्टेट. अभी हर स्टेट का मुझे इक्वेशन लिखना है, ये फर्स्ट स्टेप है, राइट? तो देखो Q0 तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाउ मेनी इनकमिंग एरोज आर देयर ऑन Q0? उसके पास सिर्फ एक इनकमिंग एरो है, तो इसका इक्वेशन मैं लिखूंगा Q0 इज इक्वल टू, ऑब्जर्व दिस, Q0 इज इक्वल टू इप्सिलॉन के साथ हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, राइट? ओके, अभी Q1 तक कैसे पहुंच सकते हैं? प्लीज सी हाउ मेनी एरोज आर देयर. 2 फिजिकल एरो दिख रहे हैं,
बट देयर आर थ्री वेज। कैसे दिखाता हूं? Q0 से 1 को लेके आप पहुंचेंगे Q1 पे, Q1 से 0 को लेके Q1 पे, Q1 को 1 को लेके Q1 पे, राइट? ओके, तो वहां पे पहुंचने के तीन रास्ते हैं। तो Q1 का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? I'll be writing Q1 is Q0 को ले, हाँ, Q0 1 को लेके हम लोग Q1 तक पहुंच सकते हैं, या प्लस Q1 0 को लेके पहुंच सकते हैं, प्लस Q1 1, राइट? ओके, सो ये हुआ इक्वेशन ऑफ व्हाट? Q1, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ Q2। Q2 पे पहुंचने के तीन रास्ते हैं। Q0 से 0 को लेके, Q2 0 को लेके, Q2 1 को लेके, राइट? ओके, तो यहां पे Q2 के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। Q0 0 से लेके वहां तक पहुंचे, प्लस Q2 0 से लेके पहुंचे, प्लस Q2 1 को लेके पहुंचे, राइट? ओके, ये मेरा थर्ड है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये आपने इक्वेशन लिख दी है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा गिवन टू यू, राइट? आई होप कि ये बहुत सिंपल है, अभी इजी है, राइट? ना इसमें थोड़ा और एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे देखते हैं हम लोग फाइनल स्टेट कौन सा है। फाइनल स्टेट है Q1, इंडिकेटेड बाय डबल सर्कल दैट वी नो फ्रॉम फाइनाइट ऑटोमाटा, राइट? तो फाइनल स्टेट का जो रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो अपना फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, प्लीज ऑब्जर्व। यहां पे अगर मैं Q0, Q1 एंड Q2 की तरफ देख रहा हूं, तो Q2 मेरा ऐसा स्टेट है जहां से फाइनल स्टेट की तरफ जाने के लिए मुझे एक भी रास्ता नहीं है। मतलब जैसे ही मैं Q2 में आ गया, आई एम डेड, आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ Q2 एंड देयर इज नो एनी पाथ टू रीच टू द फाइनल स्टेट Q1, राइट? ओके, सो इस केस में कैसे करेंगे? यहां पे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि Q2 इज व्हाट स्टेट? डेड स्टेट, राइट? एंड अपना और एक ऑब्जर्वेशन ये जो है वो कौन सा है? अपना फाइनल स्टेट। तो इस फाइनल स्टेट के हिसाब से जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी आवर रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? ओके, सो डेड स्टेट के बारे में हम लोग कभी सोचेंगे नहीं, एज यूजुअल, राइट? तो हम लोग अभी सोचते हैं Q1 को। सो आई एम राइटिंग Q1 अगेन, प्लीज ऑब्जर्व। Q1 इज इक्वल टू Q01 प्लस Q10 प्लस Q11, राइट? ओके, यहां पे Q0 का वैल्यू डाल देते हैं, राइट? हाँ, यूजिंग इक्वेशन 1 कैसे कर सकते हैं? Q1 इज इक्वल टू ε1 प्लस Q10 प्लस Q11, राइट? ओके, अभी और ऑब्जर्व करो, इप्सिलॉन विथ एनीथिंग, वी नो एनीथिंग, राइट? सो इसको लिखा 1 प्लस, यहां पे Q1 को कॉमन निकाल सकते हैं। यू नीड टू ट्राई, वी नो दैट आर्डेंस थ्योरम कह रहा है R इज इक्वल टू Q प्लस RP कैन बी रिड्यूस टू R इज इक्वल टू QP क्लोजर, राइट? हम लोगों को इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने का प्रयास करना है, राइट? तो अभी देखो यहां पे R में मेरा, LHS में मेरा Q1 है, तो ये Q1 अगर कॉमन निकालते हैं तो वी कुड बी एबल टू रीच टू ये फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। सो प्लीज ऑब्जर्व, यहां पे लिख रहा हूं Q1 कॉमन एंड देन 0 प्लस 1। आई होप कि ये कॉमन वाला इश्यू इज क्लियर, राइट? ओके, नाउ देखो ये हुआ मेरा R, दिस इज माई Q, दिस इज माई R एंड दिस इज माई P। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू R इज इक्वल टू QP क्लोजर। आई होप कि आप ये अभी इसको रिलेट कर रहे हैं, राइट? ओके, तो अकॉर्डिंग टू आर्डेंस थ्योरम, इफ आई यूज, यहां पे लिखने जा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू आर्डेंस थ्योरम, इफ आई गो विद दिस इज Q1 इज इक्वल टू, Q तो लिखना है, सो Q इज 1 डॉट P क्लोजर, P इज 0 प्लस 1 का क्लोजर, एंड एज द Q1 इज फाइनल स्टेट, Q1 इज फाइनल स्टेट, उसके साथ जो रेगुलर एक्सप्रेशन बना दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस FA कन्वर्टेड टू RE, राइट? ओके, सो यहां पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। रेगुलर एक्सप्रेशन इज 1 डॉट 0 प्लस 1 का क्लोजर, एंड दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज बीन फॉर्म।
आप इनको इलिमिनेट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये ब्रैकेट भी हम लोग ड्रॉ करें, राइट। ओके, सो फाइनल एक्सप्रेशन बना 1.0 प्लस 1 क्लोजर। अभी अपने हिसाब से दिस लैंग्वेज इज व्हाट, 1, लैंग्वेज में कंस्टेंट है, कंपल्शन है, इट शुड स्टार्ट विथ 1, एंड उसके बाद 0 और 1 का n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज पॉसिबल, राइट। ओके, 0 और 1 का एनी कॉम्बिनेशन। सो इज दिस लैंग्वेज, देखो ये अभी फाइनाइट ऑटोमाटा, अगर लैंग्वेज शुरू हो रहा है 0 से तो इट इज रीचिंग टू व्हाट, डेड स्टेट। So it must start with 1, and once it starts with 1, everything is accepted. Happy forever वाला issue याद आता होगा, right? Okay. So this language is express भी करना है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में कि बनाया हुआ लैंग्वेज को एक्सप्रेस करो. So this is starting with 1 followed by any number of zeros and ones, or just you can write this RE or this finite automata is representing the language where every word should start with 1, right? ये है कंप्लीट सॉल्यूशन. स्टेप्स वापस बताता हूं. हम लोगों ने ये 3 इक्वेशंस लिखे, राइट. देन वी हैव रिटर्न फाइनल स्टेट के लिए आर्डेंस थ्योरम को अप्लाई करने का कोशिश करना है. सो कुछ रिप्लेसमेंट करके यहां तक आए, यहां पे आर्डेंस थ्योरम को अप्लाई किया, वी गेट दिस, एंड फाइनल स्टेट का जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है दैट इज आवर फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशंस. आई होप कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इजी एंड क्लियर टू यू ऑल, राइट. ओके, इसके बाद वाले प्रॉब्लम में चलते हैं. सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So here, generate the regular expression for following finite automata and describe the language. इस language को describe भी करना है. And finite automata is given to you. दो ही states है. Many a times it happens that in the given problem statement, you will find that the states are not represented with Q0, Q1, Q2. That is usual notation. But जो भी representation है, उसके साथ हमको काम करना है, right? Okay. So what I'll do is, ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करते हैं so that we could be able to use it for writing our REs in a proper form here, right? Okay, so A पे आने वाले कितने एरोज हैं? फिजिकली 2 है पर एक्चुअली 3 है. ये एम्प्टी एरो, दिस इज B से 0 से भी A पे आ रहा है, B से 1 को लेके भी A आ रहा है, राइट. ओके, सो A का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं. सो A विल बी एप्सिलॉन प्लस, हाँ, B 0 के साथ एंड B से 1 के साथ हम लोग A तक पहुंच रहे हैं. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, राइट. सेकंड स्टेट है अपना B की तरफ फिजिकली एक एरो दिख रहा है डायग्राम में, ट्रांजिशन ग्राफ में, पर 2 एरो है. A से 0 के साथ B तक पहुंच रहे हैं, A से 1 के साथ B तक पहुंच रहे हैं, राइट. ओके, सो हाउ टू राइट अ B का इक्वेशन? A से 0 के साथ प्लस, और प्लस मतलब और दूसरा वे क्या है? A से ही 1 के साथ, and this is second equation, right? Okay, we can reduce this equation here only, that A को अगर कॉमन ले लिया तो 0 प्लस 1, right? Okay, and ये हुआ B का इक्वेशन. अभी अपने पास 2 इक्वेशन है एंड हमको ढूंढना है फाइनली द इक्वेशन ऑफ B, राइट. पर यहां पे क्या करते हैं हम लोग? इस A के इक्वेशन को मैनिपुलेट करते हैं. देखो यहाँ पे अगर B का वैल्यू आप रख देते हो, B का जो वैल्यू है वो अगर A के इक्वेशन में रख दिया तो कैसे होगा? प्लीज ऑब्जर्व. A इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस, अभी B की जगह पे मैं लिख रहा हूं A 0 प्लस 1 एंड ये 0 एज इट इज प्लस, राइट. B की जगह पे ये लिखेंगे A 0 प्लस 1 एंड ये 1 एज इट इज, राइट. ओके, तो अभी यहां पे चांस है आर्डेंस को अप्लाई करने का. वी नो आर्डेंसेस R इज इक्वल टू Q प्लस RP, व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड एज R इज इक्वल टू QP क्लोजर, राइट. ओके, ये R यहाँ पे दिखने का चांस यहाँ पे मिल रहा है. देखो LHS में भी R है, RHS इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ R ओनली, राइट. ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कैसे कन्वर्ट करेंगे. A इज इक्वल टू एप्सिलॉन तो यहाँ पे रख ही रहे हैं प्लस, राइट. A को यहां पे अगर देखें हम लोग, A को अगर कॉमन निकाले तो क्या बचता है? A यहां पे बचेगा 0 प्लस 1 0 प्लस
0 प्लस 1 का 1, राइट? ओके, नाउ इस 0 प्लस 1 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, सो दिस गिव्स मी a इज इक्वल टू इप्सिलॉन प्लस a, ब्रैकेट में 0 प्लस 1 को कॉमन निकालो, हाँ क्या बचता है वापस 0 प्लस 1, सो ये बचेगा 0 प्लस 1, राइट? ओके, एंड आई एम एबल टू सी द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ r इज इक्वल टू r, सॉरी, r इज इक्वल टू Q प्लस आर पी, राइट? ओके, जहां पे ये पूरा का पूरा अपना क्या है, P है, राइट? ओके, जिसको रिड्यूस कर सकते हैं R इज इक्वल टू क्यू पी क्लोजर के रूप में, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट आई डू इज, हाँ, सो यहां पे आई गो अहेड विथ, सो इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, ए इज इक्वल टू ये हुआ इप्सिलॉन डॉट, राइट? ओके, इप्सिलॉन डॉट ब्रैकेट में 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 का क्लोजर, राइट? ओके, पर ये जो इक्वेशन बना तो वो ए के साथ बना, अपना फाइनल सेट कौन सा है, बी, तो बी का इक्वेशन हम लोगों को लिखना है। पर अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करते हो कि बी का इक्वेशन कैसे बन रहा है, ए एंड देन 0 प्लस 1, तो कैसे लिखेंगे इसको, बी का फाइनल इक्वेशन विल बी, राइट? सो यहां पे ए का वैल्यू डाल देते पूरा का पूरा, सो दिस बिकम्स व्हाट, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 का एंटायर क्लोजर, उसके बाद 0 प्लस 1, राइट? ओके, ये हुआ अपना फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन इसके अगेंस्ट। अभी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है, प्लीज ऑब्जर्व, इस लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है, राइट? ओके, अगर ये आप देख रहे हो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, राइट? ओके, उसका क्लोजर एंड देन 0 प्लस 1, राइट? ओके, तो अभी यहां पे इफ वी आर एबल टू रिकॉल द इक्वेशंस दैट वी हैव सीन फॉर इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए इक्वेशन ऐसे बनाया था, एंड फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस में एक और ऑड नंबर आया था, सो 0 0 0 का क्लोजर, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 का क्लोजर के बाद 0, राइट? ओके, तो अभी ये तो हुआ इवन नंबर ऑफ जीरो, ये हुआ ऑड नंबर ऑफ जीरो, उस हिसाब से अगर इसको ध्यान से देखते हैं, वही लैंग्वेज टू आरई में ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, राइट? 0 और 1 तो बनना ही है, राइट? एक तो 0 और 1 बनेगा ही, लेंथ ऑफ द लैंग्वेज मिनिमम शुड बी 1, इसमें इप्सिलॉन बनने का पॉसिबिलिटी नहीं, एंड फिर उसके बाद 0 और 1 का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन पेयर, राइट? तो 1 प्लस 2 3 बनेगा, 1 प्लस 4 5 बनेगा, 1 प्लस 6 7 बनेगा, मीन्स दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज आरई accepts all words with odd length. Ari accepts all words with r or odd lengths, right? Okay, so I hope कि ये भी clear हुआ कि how this has been formed with the help of Arden's theorem and how we can reach to equivalent Re. बहुत इजी है, मैथमेटिक्स जैसा ही काम है पूरा का पूरा, आपको इसको रिप्लेसमेंट करके जाना है। यू शुड बी ऑलवेज फोकसिंग ऑन अप्लाइंग आर्डेन्स थ्योरम, इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना है टू अप्लाई दिस, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस प्रॉब्लम वाज मल्टीपल टाइम्स इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, राइट? ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है पर इसको बहुत सिंपल करने वाले हैं। देखो, प्रूव दैट फॉलोइंग एफ एक्सेप्ट्स, मतलब ये जो फाइनाइट ऑटोमाटा है उसका आरी तो बनाना ही है, वहां पे प्रूव करना है स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस, स्ट्रिंग विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोस, जितने जीरो बनेंगे उतने ही वंस बनेंगे, या जितने वंस बनेंगे उतने ही जीरोस बनेंगे, राइट? सच दैट ईच प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स ये नया नोटेशन आ चुका है, देखेंगे क्या है, has at most one more zero than ones or at most one more one than zeros. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहले हम लोग फोकस करेंगे इतने ही ऊपर, एंड देन ये सच दैट वाला इशू मैं क्लियर करूंगा सबसे एंड में, राइट? ओके, तो इस इक्वेशन को पहले यहां पे लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले इक्वेशन को,
राइट, ओके। एंड अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट कि यहाँ पे क्या क्या, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर एंड कितने कितने एरोज उनके ऊपर है, राइट, ओके। सो इक्वेशंस के लिए आई विल गो विथ लेट अस से Q0, Q0, हाउ मेनी एरोज आर लैंडिंग ऑन Q0, प्लीज ध्यान से देखो। एक एरो है, सेकंड एरो है, थर्ड एरो है, राइट, ओके। सो Q0 तक पहुंचने के तीन रास्ते। पहला है इप्सिलॉन के साथ, दूसरा है Q1 से 1 के साथ, राइट, Q1 से आ रहे 1 के साथ, प्लस Q2 से आ रहे 0 के साथ। Q2 से निकले 0 के साथ आए Q0 तक, Q1 से निकले 1 के साथ आए Q0 तक। बहुत इजी है, ये इक्वेशन लिख दिया। लेट अस गिव द नंबर एज 1। सेकंड इक्वेशन आई एम राइटिंग फॉर Q1। Q1 तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? Q1 तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, दैट इज व्हाट, Q0 से निकले एंड आप पहुंचे Q1 तक 0 के थ्रू, राइट। सो Q0 से निकले 0 के थ्रू आप पहुंचे Q1 के ऊपर, राइट। Q2 में भी पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्लीज ऑब्जर्व, राइट, ओके। सो Q2 ये लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 2। Q2 लिखा, कैसे पहुंच रहे हैं? Q2 से लेके, सॉरी, Q0 से लेके, Q0 से निकले हैं 1 को लेके पहुंचे Q2 तक, राइट, ओके। तो यहाँ पे Q0 1, सो इसको लिख दिया थर्ड। सो नाउ Q3 तक कैसे पहुंच रहे हैं वो ध्यान से देखो। Q3 तक पहुंचने के चार रास्ते हैं। वन इज फ्रॉम Q2, नेक्स्ट इज फ्रॉम Q1 एंड Q3 का सेल्फ लूप, मतलब Q3 से ही Q3 में पहुंच रहे हैं। कैसे लिखना है ध्यान से देखो। Q3, राइट, हाँ, Q1 से लेके, Q1 से पहुंच रहे 0 को लेके, Q2 से पहुंच रहे वहां पे 1 को लेके, एंड Q3 0 प्लस Q3 1, राइट, ओके। बट इफ यू ऑब्जर्व दिस स्टेट, ये स्टेट अगर देखते हो, जब भी आप Q3 में पहुंचते हो वहां से, इज देयर एनी वे, एनी अल्टरनेटिव सो दैट यू कैन रीच टू दिस फाइनल स्टेट? तो Q3 ऐसा स्टेट है जहां से बाहर नहीं आ सकते एक बार पहुंचे तो, एंड फाइनल स्टेट की तरफ बढ़ नहीं सकते फॉर एक्सेप्टेंस। सो Q3 इज कंसिडर्ड एज व्हाट, डेड स्टेट। Q3 इज कंसिडर्ड एज व्हाट, डेड स्टेट, राइट। तो Q3 के बारे में हम लोगों को सोचना नहीं है, अपने पास तीन इक्वेशंस बन चुके हैं। अभी आर्डेंस को अप्लाई करते जाना है। Ardens again can be written as R is equal to Q plus RP, can be reduced to R is equal to QP closure, right? Okay. Now in this case, let us go on thinking about how to apply this. Q1 and Q2 both are represented in terms of Q0. तो ये यहाँ पे अगर लिख देते हैं तो you could be able to identify that हम लोग आर्डेंस थ्योरम की इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, राइट। सो बाय रिप्लेसिंग Q1 एंड Q2 इन दिस, Q0 को वापस कैसे लिखेंगे? Q0 इज इक्वल टू, देखो, Q0 इज इक्वल टू, आई विल बी राइटिंग इप्सिलॉन प्लस Q1 इज Q0 0, Q0 0 एंड उसका ये 1 एज इट इज, प्लस Q2 का वैल्यू लिख रहा हूं Q0 1 एंड इसका 0 एज इट इज, राइट, ओके। ये इक्वेशन हमको बनाया, राइट, ओके। नाउ कैन वी गो अहेड? Q0 इज इक्वल टू इप्सिलॉन प्लस Q0 को कॉमन लेते हैं 0 1 प्लस 1 0, राइट, ओके। एंड यहां पे मिल चुका है आर्डेंस, R इज इक्वल टू Q प्लस आर पी, राइट, ओके, जो कि रिड्यूस हो सकता है R इज इक्वल टू क्यू पी क्लोजर, राइट, ओके। तो यहां पे चलो, let's go on reducing this. So this becomes what? Q0 is equal to, Q0 is equal to epsilon dot 0 1 plus 1 0 का क्लोजर। So ultimately Q0 is equal to 0 1 plus 1 0 का क्लोजर, right? So final RE अपने को मिला है Q0 के अगेंस्ट 0 1 plus 1 0 का क्लोजर। अभी ये लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज देखो, यहां पे जब भी क्लोजर आप पुटअप करोगे, ब्रैकेट में से जब भी 0 बाहर निकलता है तो उसके बाद उसके साथ 1 को आना कंपलसरी है, 0 1 या 1 0। तो इससे जो भी लैंग्वेजेस बनेंगे, मतलब जितने भी वर्ड्स बनेंगे, ऑल विल हैव इक्वल नंबर ऑफ zeros and ones, right? Okay, so this RE represents, 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 this RE represents,
language consists of language consists of equal number of zeros and ones, राइट ओके। तो हाफ सॉल्यूशन तो हमको मिल चुका है, राइट। स्ट्रिंग सच दैट इक्वल नंबर ऑफ व्हाट जीरोस एंड वंस, ये तो हम लोग हाफ सॉल्यूशन तक पहुंचे हैं। अभी देखो सच दैट ईच प्रीफिक्स हैज एट मोस्ट वन मोर जीरो। प्रीफिक्स मतलब क्या, ये इसको जानते हैं पहले, राइट। फाइनल स्टेट कौन सा है, Q0। Q0 तक पहुंचने के लिए जो स्टेट से हम लोग गुजर रहे हैं, मतलब पहला स्टेट Q0 तक पहुंचने के लिए उसके पहला जो स्टेट आ रहा है उसको कहेंगे प्रीफिक्स। तो अभी Q0 को ध्यान से देखते हैं। Q0 को पहुंचने के लिए अपने पास तीन रास्ते हैं रादर। एक तो इप्सिलॉन है, वहां पे कोई स्टेट नहीं है। दूसरा है Q1 एंड Q2। सो Q1 एंड Q2 आर माई प्रीफिक्सेस, बिकॉज उनके थ्रू ही मैं Q0 दैट इज फाइनल स्टेट में पहुंच रहा हूं, राइट। सो फर्स्ट प्रीफिक्स लेट अस कंसिडर्ड एज Q1। सो Q1 प्रीफिक्स का इक्वेशन यहां पे है, सो वी कैन राइट इट एज Q0 डॉट जीरो, राइट ओके। Q0 का इक्वेशन अपने लिए है, तो यहां पे कैसे लिख सकते हैं, 0 1 + 1 0 क्लोजर डॉट जीरो। ये हुआ Q1 का इक्वेशन। अभी देखो ये प्रीफिक्स, दिस प्रीफिक्स में ये तो है लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस, एंड उसके बाद एक सिर्फ जीरो ज्यादा है। So at most 1 0, at most, right? At most one more zero than number of ones. And अगर Q2 प्रीफिक्स के लिए जा रहे हैं, Q2 के लिए, तो इक्वेशन कैसे देखो, Q0 1। तो कैसे लिखना है, 0 1 + 1 0 का क्लोजर फॉलोड बाय 1, राइट। ये लैंग्वेज तो है इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस, एंड वी डू हैव व्हाट, एट मोस्ट वन मोर वन देन नंबर ऑफ जीरोस। तो ये लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटिंग इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस, नो डाउट, बट सच दैट ईच प्रीफिक्स, दो ही प्रीफिक्स है, ईच प्रीफिक्स शुड हैव एट मोस्ट वन मोर जीरो देन नंबर ऑफ वंस, और one more one than number of zeros. So these are what equations for prefixes. बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, उतना ही इजी भी है अगर हम आर्डेंस को प्रॉपरली अप्लाई कर पाए तो, राइट ओके। सो इसका प्रैक्टिस करना है, देखना है, राइट। डरना मना है, इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट ओके। सो प्रीफिक्स मतलब ऐसा स्टेट जहां से हम लोग फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हैं। फाइनल स्टेट में से पहुंचने का पहला वाला स्टेट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, प्रीफिक्स स्टेट। आई होप कि ये प्रॉब्लम इज क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग वन, राइट ओके। सो let's move into the one more problem. Right. Okay. So this says convert the following transition diagram into the regular expression using Arden's theorem. And this diagram is given to you, right? Okay. So let us try to see how we can go on applying this. A, B, C. अभी तो it is very sure पहले तीन प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद you can write very easily equations of each state, right? Okay. So इसको हम लोग पहले let's take this diagram to this side so that, right okay. So A B C तीन सेट के इक्वेशंस को लिखना है, right? So let's go with A का इक्वेशन। A का इक्वेशन, हाँ, there are like three ways that we can come into A. The first way is epsilon plus we can come from A1 and we can come from B1, right okay. सो ये दोनों एरोज तो मैंने उधर ड्रॉ कर दिए। नाउ बी तक पहुंचने की कितने रास्ते हैं, प्लीज ऑब्जर्व, वन एज वेल एज दिस वन, राइट ओके। सो ए से जीरो को लेके बी तक पहुंचता है, सी से जीरो को लेके बी तक पहुंच रहा है, राइट ओके। सो बी का इक्वेशन ए से जीरो को लेके प्लस सी से जीरो को लेके, राइट ओके। नेक्स्ट वन इज सी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, दैट इज व्हाट, थ्रू बी, एंड दैट इज C इज इक्वल टू, हम लोगों के पास है B से लेके 1 तक, राइट ओके। नाउ यहां पे
यहाँ पे लेट्स गिव द नंबरिंग टू दिस. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड वन. राइट, ओके. अभी ये एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन रहा है. देखो, ए में ए एज वेल एज बी दोनों भी है, बी में भी ए एज वेल एज सी दोनों भी है, एंड सी में बी का इंक्लूजन है. एंड हम लोगों को ढूंढना है फाइनल एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सी, बिकॉज सी इज व्हाट, फाइनल स्टेट. इस केस में देयर इज नो इंक्लूजन ऑफ डेड स्टेट. तो इसमें अभी रिप्लेसमेंट कैसे कैसे करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से सोचना है. राइट, ओके. So please observe the diagram again, all these equations, and let us then think of putting this into the minimization so that we can apply the Arden's, that is R is equal to Q plus RP can be reduced to R is equal to QP closure. So let's go on solving this. So now यहाँ पे we'll take this A into the form of B. तो यहां पे फिर ए को बी के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, एंड सी तो ऑलरेडी बी के फॉर्म में है. तो ट्राइंग टू रिड्यूस इट फॉर व्हाट, लुकिंग टुवर्ड्स बी का कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ आर्डेन्स थ्योरम. राइट, ओके. तो थोड़ा सा ए के बारे में सोचते हैं पहले. ए इज इक्वल टू इप्सिलॉन प्लस, ऐसे लिख रहा हूं, B1 प्लस A1. राइट, ओके. यहाँ पे तो तुरंत मुझे आर्डेन्स कैसे मिल रहा है, देखो. अगर इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में मार्क किया तो दिस बिकम्स माई R is equal to Q plus R and P. राइट, ओके. जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं R is equal to Q P क्लोजर में. राइट, ओके. कैसे करेंगे? सो दिस बिकम्स A is equal to epsilon plus B1 and dot P closure, that is 1 का closure. Right, okay. So now let's see this equation, we can put it in B. राइट, एक का इक्वेशन तो बन चुका है, उसको बी में पुटअप करते हैं, एंड फिर यहां पे ऑलरेडी सी तो बी में रिप्रेजेंटेड है ही, तो बी के ऊपर भी आर्डेन्स अप्लाई कर सकते हैं. राइट, सो बी में कैसे इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लीज सी. ए एज इट इज आई एम पुटिंग हियर, सो दिस बिकम्स इप्सिलॉन प्लस B1 1 क्लोजर. राइट, ओके. सो यहाँ पे B1 1 क्लोजर पुटअप कर दिया, एंड इसका जीरो इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो ये जीरो आएगा यहाँ पे. आई होप कि दिस इज ए एंड ये जीरो प्लस सी जीरो, सी के जगह पे लिखा है B1. राइट, ओके. सो यहाँ पे लिखेंगे B1 एंड जीरो. राइट, सो नाउ if we want to take out the B term as a common to reach to the Arden's theorem, in this case क्या करना पड़ेगा, इस 1 क्लोजर जीरो को अंदर लाना पड़ेगा. राइट, ओके. सो दिस बिकम्स B is equal to epsilon with 1 closure 0 becomes 1 closure 0 प्लस यहाँ पे होगा B, इसको हटाते हैं हम लोग. राइट, हाँ, प्लस B1 1 closure 0 plus B1 0. Right, can we take a B common? Yes, B is equal to 1 closure 0 plus B, and इसके बाद आएगा 1 1 closure 0 plus 1 0, and यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो R is equal to Q plus R, and ये पूरा अपना P can be reduced to R is equal to Q P closure. Right, okay. and ये closure कैसे आएगा? So here I'll be writing B is equal to 1 closure 0 डॉट इसका पूरा क्लोजर. राइट, सो 1 1 क्लोजर 0 प्लस 1 0 का एंटायर क्लोजर. ये हुआ इक्वेशन ऑफ बी. एंड नाउ दिस बी का इक्वेशन हम लोग पुट ऑन कर सकते हैं इक्वेशन किसमें, सी में, क्योंकि अपना सी इज फाइनल स्टेट, एंड देन विल रीच टू द फाइनल आर ई. राइट, ओके. सो सी इज इक्वल टू व्हाट, B1. सो बी का पूरा इक्वेशन लिखेंगे एंड में 1. So C becomes, right, okay, this is 1 closure 0 dot 1 1 closure 0 plus 1 0 का entire closure, and उसके बाद आएगा 1, and this is my final equation. चेक करते हैं, आप हमेशा ये क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये इक्वेशन सही है या नहीं, आपने जो बनाया है. राइट, ओके. अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे, सो सी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, दैट इज थ्रू 1 एज ए इनपुट. तो ये लैंग्वेज हमेशा होगा एंडिंग विथ 1, दैट इज योर फर्स्ट चेक पॉइंट.
हर बार लैंग्वेज किससे हो रहा है, एंड विथ वन, राइट। एंड शुरू में लैंग्वेज में शुरू में देखो वन क्लोजर डॉट जीरो से ही आप बी तक पहुंच सकते हो, वन क्लोजर डॉट जीरो से आप बी तक पहुंच सकते हो, राइट। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन अप्लाई टू चेक, लाइक जो बन रहा है वो तो हमने परफेक्ट ही बनाया नो डाउट, बट जो बना है फाइनल आरई वो लैंग्वेज के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, राइट। ओके, सो दिस इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जहां पे बहुत सारे रिप्लेसमेंट करने पड़े, राइट। पहला ए को फॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ बी, राइट। ओके, देन बी के ऊपर रिप्लेसमेंट्स करके वी अप्लाई द आर्डेंस थ्योरम एंड देन सी में फाइनली वी रीच टू द फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन। अभी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोगों को ढूंढना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फाइनाइट ऑटोमाटा कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। पर यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये प्रॉब्लम पिछले प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा सा अलग है, एंड इस केस में आपको दिए गए हैं व्हाट, दो फाइनल स्टेट्स। सो जब भी दो फाइनल स्टेट्स दिए गए हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यस तो यहां से भी लैंग्वेज एक्सेप्टेड है और देयर इज वन मोर वे टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज विद दिस, तो ये होगा जो आर फॉर्म करेंगे उनका यूनियन बिकम्स माय फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। ओके, कैसे करना है ध्यान से देखो, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। यहां पे लाया है, राइट। ओके, एंड लेट्स गो ऑन राइटिंग। Q1 तक कैसे पहुंच सकते हैं, देयर आर टू वेज, राइट। ओके, यहाँ पे Q0 है ही नहीं, गलती से Q0 Q1 Q2 मत लिख देना, राइट। Q1 Q2 Q3 जिस फॉर्म में इक्वेशंस दिए हैं उसी फॉर्म में क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर शीट में लेने हैं, उसके ऊपर काम करना है, चाहे वो A B C X Y Z Q1 Q2 Q0 Q2 क्यों ना हो, राइट। ओके, लेट्स गो विद द फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर Q1। सो Q1 के लिए हाउ मेनी वेज, देर आर टू वेज। एक तो हम लोग पहुंच रहे हैं इप्सिलॉन से प्लस, राइट। नेक्स्ट इज Q1 से ही पहुंच रहे हैं जीरो को लेके, राइट। ओके, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लेट्स राइट इट फॉर Q2। Q2 में पहुंचने का देर आर टू वेज, वन एंड दिस इज टू, राइट। ओके, सो Q1 से पहुंच सकते हैं वन को लेके प्लस Q2 से पहुंच सकते हैं वन को लेके, right? Okay, and this is second equation. If I go with Q3, Q3 में पहुंचने के तीन रास्ते हैं, one is from Q2, other one is from Q3 itself, right? Okay, so Q3 में पहुंचने के लिए, so what is it? Q2 से लेके Q2 से 1 को लेके, then Q3 से 0 को लेके, Q3 से 1 को लेके, right? Okay, and this is third equation. And if you are observing it nicely, then this particular dead state, मेरा क्वेश्चन है क्यों ये डेड स्टेट है, बिकॉज यहां से फाइनल स्टेट में जाने का कोई रास्ता नहीं है, राइट। ओके, सो दिस बिकम्स माय डेड स्टेट। तो काम बहुत आसान बना, अपने को इसमें ही काम करना है, राइट। ओके, एंड अगर आप पहला इक्वेशन देखते हो Q1 इज इक्वल टू इप्सिलॉन प्लस Q1 0, वहीं पे मुझे आर्डेंस दिख रहा है, राइट। ओके, सो व्हाट इज इट, R is equal to Q plus RP can be reduced to R is equal to Q dot P closure. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, so Q1 becomes epsilon dot 0 का closure becomes anything with epsilon is anything. तो Q1 का इक्वेशन अपने लिए जीरो क्लोजर बन चुका है, राइट। ओके, लेट अस सी अबाउट Q2 नाउ। सो Q2 का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, Q1 ऑलरेडी बन चुका है, सो जीरो क्लोजर 1 प्लस Q2 1। यहां पे भी आर्डेंस तुरंत दिखाई दिया, प्लीज ऑब्जर्व, दिस इज R इज इक्वल टू Q प्लस R एंड P, राइट। ओके, कैन बी रिप्लेस्ड एज R इज इक्वल टू Q डॉट P क्लोजर, एंड कैसे लिखेंगे, Q2 इज इक्वल टू जीरो क्लोजर 1 डॉट 1 का क्लोजर, राइट। ओके, एंड ये हुआ अपना सेकंड एक्सप्रेशन, राइट। ओके, अभी इस केस में द फाइनल आरी जो आपको लिखना है, फाइनल आरी, तो यहाँ पे दो फाइनल स्टेट्स है, तो दोनों भी फाइनल स्टेट के हिसाब से, मतलब इस फाइनाइट ऑटोमेटा में आने वाले सारे वर्ड्स एक तो फाइनलाइज हो सकते हैं Q1 के ऊपर, और चॉइस है उनके पास Q2 के ऊपर,
राइट मतलब चॉइस की वजह से हम लोगों को बनने वाला फाइनल आरई विल बी द यूनियन ऑफ Q1 प्लस Q2, right? Okay. So final regular expression is equal to the regular expression that we got on Q1, that is zero closure plus यहाँ पे है zero closure 1.1 closure, zero closure 1.1 closure, right? Okay. ये आंसर भी फाइनलाइज्ड है, नो डाउट. ये आंसर भी एग्जाम में परफेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा, राइट? बट आरई आइडेंटिटीज को अप्लाई करने के बाद आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. ध्यान से देखना है, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं. जीरो क्लोजर को कॉमन निकाला तो इट बिकम्स व्हाट, इप्सिलॉन प्लस 1.1 क्लोजर. जीरो को इधर से बाहर निकाला है, राइट? सो इप्सिलॉन डॉट 1 प्लस 1 क्लोजर. डू वी रिमेंबर द आइडेंटिटी? Epsilon plus r dot r closure becomes r closure. So this goes with zero closure dot 1 closure, and this can be treated as final RE also, right? So this language, this particular finite automata says that any number of zeros followed by any number of ones will be accepted in this, राइट ओके. एक बार सारे जीरोस मिले, उसके बाद सारे वंस आर एक्सेप्टेड. बट वंस के बाद आने वाला, सारे वंस के बाद आने वाला जीरो इज नॉट एक्सेप्टेड. मतलब एंड में जीरो नहीं आएगा इस लैंग्वेज में, ये तो पक्का है, राइट ओके. सो आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लियर एंड इससे ये परफेक्ट आरई बन सकता है, राइट ओके. सो दिस इज व्हाट all about how to apply Arden's theorem so that given finite automata can be converted into corresponding equivalent regular expression, right? Okay. So that's it for this session. Next session में मिलेंगे. RE का conversion अभी FA में करना है, तो उसके साथ what are the rules and how we can go with, right? Okay. That's it for this session. Thanks for the watching. Thank you very much.